أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے سسٹر، آج ہم ایک نئے ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خط کی کہانی. خط کی کہانی ہے نا، جیسے کہ آج موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو یہ خط جو پہلے زمانے میں ہے نا، پہلے کے جو وقت تھا اس میں خط ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا، ہے نا، ایک امپورٹنٹ چیز تھی، ہے نا. جیسے خط کے ذریعے ہم اپنوں سے بات کرتے تھے، تو آج کے بچے خط کو بہت یہ لیتے ہیں، مطلب خط کیسے تھا، کیسے جاتا تھا، کیسے کون بھیجتا تھا، ہے نا. تو اس سبق کے ذریعے ہم اس پوری معلومات کو، وہ پوری انفارمیشن کو زندہ کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل کے نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے کہ خط کیا تھا، کیسے لکھا جاتا تھا، اس کی پروسیس ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنے کی کیا ہوتی تھی، یہ سب آج اس خط کی کہانی اس ٹاپک کے ذریعے ہم دیکھنے جا رہے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آپ سبھی دھیان سے سنیں گے اور سمجھیں گے، اور آخر میں جو سوالات ہوگی آپ انشاءاللہ پوچھ لینا. تو خط کی کہانی، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خط کی کہانی. ایک خط کہہ رہا ہے، یہ کہانی کیسے ہوتی ہے کہ ایز خط، مطلب خط خود وہ لکھ رہا ہے، ایسے ہوتی ہے. تو دیکھیے، میں ایک کوڑا کاغذ تھا. مطلب وہ خود خط ہے. آپ ایسے امیجن کریں گے کہ آپ خود ایک خط ہے، ایسے تو وہ خود لکھ رہا ہے کہ میں ایک خط تھا. ہاں، ایسے اس انداز میں آپ سوچے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا. پوری جو ٹاپک ہے ہمارے سمجھ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. میں ایک کوڑا کاغذ تھا. اسلم نے مجھے میز کی دراز سے نکالا اور اپنے بھائی اکرم کے نام لکھنا شروع کیا. دیکھیے، جو خط ہوتا ہے وہ خط بننے سے پہلے کیا ہوتا ہے، صرف ایک کوڑا کاغذ ہوتا ہے. تو پھر وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں ایک کوڑا کاغذ تھا، اسلم نے مجھے میز کی دراز سے نکالا، ہے نا، میز کی یعنی جو ہمارے اسٹڈی ٹیبل وغیرہ ہوتا ہے نا، اس کی ایک دراز سے نکالا اور اپنے بھائی اکرم کے نام لکھنا شروع کیا. پہلے بسم اللہ لکھی، پھر کچھ اکرم کا حال پوچھا. اکرم ہے نا، ان کے بھائی کا نام ہے. ہاں، پھر کچھ اکرم کا حال پوچھا، کچھ اپنا حال تحریر کیا. تحریر کرنا یعنی لکھنا. آخر میں امی ابو اور بہن کو سلام لکھا اور ایک لفافے پر اکرم کا پتہ لکھ کر مجھے اس میں بند کر دیا. ہاں دیکھیے، پوری پروسیس اب میں اور ایک بار بتاتی ہوں کہ پہلے کیا کیا اس نے. سب سے پہلے دیکھیے، خط میں جو لکھا جاتا ہے وہ کیا لکھا جاتا ہے، پہلے بسم اللہ لکھا جاتا ہے نا، شروع اللہ کے نام سے. پھر کچھ اکرم کا حال پوچھا، مطلب اگر اتنے ہم لیٹر لکھ رہے ہیں تو پہلے حال وغیرہ پوچھ لیتے ہیں، خیریت، آپ خیریت، امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوگے وغیرہ وغیرہ. کچھ اپنا حال تحریر کیا، اور ہم بھی یہاں پر خیریت و عافیت سے ہے اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی خیریت و عافیت سے ہوگے. اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں. اور پھر بیچ میں جو مقصد تھا وہ لکھا جاتا ہے، وہ یہاں پر مینشن نہیں کیا گیا ہے. فار ایگزامپل، ہم کسی دعوت کے لیے انوائٹ کر رہے ہو یا کسی کو کسی بات کی خوشخبری یا پھر کانگریچولیشن کر رہے ہو، وہ بیچ میں آتا ہے. جو مین مدعا ہوتا ہے نا، وہ خط کا بیچ میں آتا ہے، اس لیے وہ یہاں پر تحریر نہیں کیا، صرف اسٹارٹنگ اور اینڈنگ بتایا. تو بیچ میں جو ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم نے خط لکھا. اگر مقصد کچھ نہیں، ایسے حال وغیرہ پوچھنے کے لیے لکھا ہے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے. تو آخر میں پھر کیا ہوتا ہے، دیکھیے آخر میں کیا کیا جاتا ہے، امی ابو اور بہنوں کو سلام لکھا جاتا ہے نا. جو جس کے بھی ہم لیٹر بھیج رہے ہیں، اس کے گھر کے بڑوں کے لیے سلام، چھوٹوں کے لیے پیار بھیجا جاتا ہے. ایسا اینڈنگ اس طریقے سے کی جاتی ہے خط لکھنے میں. ہاں، اور ایک لفافے پر اکرم کا، اور پھر کیا کیا جاتا ہے، ایک لفافے پر یہ لیٹر ہو گیا، اور اس کے اوپر کا جو کور ہوتا ہے نا، اس کو لفافہ کہتے ہیں. جو کہ پیک ہوتا ہے، جس میں وہ لیٹر ڈالا جاتا ہے نا، اس کو لفافہ کہتے ہیں. لفافہ خالی ہوتا ہے، اس کے ایک سائڈ میں نا لفافے پر پتہ لکھا جاتا ہے جس کو ہم نے بھیجنا ہے.
हाँ, उस पर पता लिखा जाता है। ये लेटर है ना, कोरा कागज ही होता है, इसको लिफाफे में डाला जाता है। और फिर देख ऐसे भी खत हुआ करते थे जो जैसे कि यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है सिर्फ ये इस टाइप के, ये तो ये ओपन खत होते हैं। ओपन खत यानी क्या, इसी पर आपने लिखना है एड्रेस भी, और इसी पर आपका जो भी लिखना है ना वो भी होता था। ऐसे भी लेटर, ये इस तरीके के लेटर भी मैंने भी देखा है। देखिए हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में फोर्थ या फिफ्थ क्लास में थी, तब तब भी था ये लेटर का। तो तब भी लेटर इस तरीके से होते थे कि डायरेक्टली एक ऐसा येलोइश कलर का होता था, उसके साइड में यहाँ पर ऐसे कुछ स्टिकर वगैरह जो होते हैं ना हॉलमार्क के, वो चिपकाए जाते थे और यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता था और इसी पर हमने लिखना होता था। या बैक साइड से हम पहले स्टार्ट करते थे और एंडिंग यहाँ पर की जाती थी उसकी, फिर दुआ सलाम वगैरह किया जाता था। ये सिर्फ ये होता था खत। और लिफाफा, लिफाफा क्या होता है, जो ऊपर देखिए इस तरीके से एक पैक होता है। हाँ, हाँ ये बंद होता है। फिर ये वाला पोर्शन खोलकर, जो हमने एक चीट होती है व्हाइट कलर की, जो हमारा कोई भी पेज ले सकते हैं, हम इसमें लिखकर फिर ये वो इसमें डाल दिया जाता है। हाँ, फिर इसको लिफाफा कहते हैं। जो ये ऊपर का कवर हो गया ये लिफाफा, और ये हो गया खत जो हमने लिखा। जो खत लिखते हैं हम हमारे खुद के कॉपी के पेज पर वगैरह किस पर भी लिख सकते थे। फिर ये पेज जो था वो इसमें डाला जाता था। तो ये जिसमें डाला जाता है ना वो उसको लिफाफा कहते थे। हाँ, उसको लिफाफा कहते हैं। ये होता है लिफाफा। हाँ, तो खत और लिफाफा दोनों में से फर्क समझे आप। ये लिफाफा यानी एक फॉर एग्जांपल ऐसे समझे कि बॉक्स है ना, जिसमें हम हमारा लेटर डाल के भेज रहे हैं। हाँ, ये पेपर का बना होता है। और इस टाइप के भी खत होते थे कि जिसमें कुछ डाला नहीं जाता, उसी पर एड्रेस और उसी पर लिखा भी जाता था। इसे टू टाइप्स के लेटर होते थे। तो ये हो गया। तो फिर ये प्रोसेस बताई कि स्टार्टिंग खत की कैसे की जाती थी और एंडिंग, और बीच में हमारा जो मकसद होता था वो दिया जाता था। फिर इसने क्या किया देखिए, असलम ने क्या किया, एक असलम दोस्त है वो लिख रहा है अपने दोस्त अकरम के नाम खत लिखा है इसमें। हाँ, फिर वो किस तरीके से लिखा, सलाम दुआ वो सब यहाँ पर दिखाया गया है। फिर उसके बाद देखें हाँ, एक लिफाफे पर अकरम का पता लिखकर मुझे इसमें बंद कर दिया, लिफाफे में डाल दिया, और लिफाफे पर टिकट टिकट लगा दिया। टिकट होता था देखिए कि वो अगर चाप नहीं लगाते थे ना तो लिफाफा आगे नहीं जाता था। इसमें छोटी सी चीट होती थी, उस पर वो इंडिया का वगैरह क्या क्या मुहर लगाई जाती थी, ऐसे होता था, उसको टिकट कहते हैं। और गली के मोड़ पर लाल लाल लेटर बॉक्स था, मुझे इसमें डाल दिया। फिर देखिए लेटर, अभी खत तैयार हो गया हमारा, और वो उसने ले जाकर असलम ने क्या किया, लाल लाल लेटर बॉक्स था इसमें मुझे डाल दिया। मैं लेटर बॉक्स में पढ़ा रहा, दूसरे लोग भी उसमें अपने खत डालते गए। अब मैं अकेला ना था, बहुत से खत जमा हो गए। अब देखिए, अब इसके आगे वो लेटर बॉक्स लेटर बताने वाला है कि उसने क्या क्या प्रोसेस की और किस तरीके से वो अकरम के घर पहुंचा। असलम ने पहले क्या किया, बिस्मिल्लाह से लेटर शुरू किया, सबका हाल अपना हाल बताया, अकरम का हाल पूछा, और एंडिंग में क्या किया, उन्हें सलाम दुआ की, है ना, सलाम दुआ की। और फिर उसके बाद पूरा लिफाफे पर एड्रेस लिफाफे में डाला, और लिफाफे पर एड्रेस डाला किसका, अकरम का एड्रेस डाला। और फिर गली के मोड़ पर एक लाल लाल लेटर बॉक्स था, उसमें उसको डाल दिया। फिर लेटर अब कह रहा है, अब ये सब लेटर बॉक्स बोल रहा है, इसके आगे जो भी होगा वो लेटर लेटर है ना, वो खुद अपनी जुबानी कह रहा है। देखते हैं चले वो क्या कहता है। देखिए, फिर मैं लेटर बॉक्स में पड़ा रहा, दूसरे लोग भी उसमें अपने खुद खत डालते गए। मैं अकेला न था, बहुत से खत जमा हो गए। 4 बजे बड़े डाक खाने से एक डाकिया आया। जो लेटर पहुंचाता था ना उसको डाकिया कहते हैं। जो लेटर इस गांव से उस गांव या गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना, ऐसे जो काम करता है ना आदमी, तो उसको डाकिया कहते हैं। तो 4 बजे बड़े डाक खाने से एक डाकिया आया। उसने लेटर बॉक्स खोला, तमाम खतूत को निकाल कर एक थैले में डाले, थैले को डाकखाने ले गया। तमाम खतूत सॉरी खत खत की जमा खतूत होते थे, तो तमाम खत निकाल कर एक थैले में डाले और थैले को डाकखाने ले गया। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। थैले को क्या किया उस डाकिया ने, देखिए वो टाइम होता है उनका 4 बजे 5 बजे, जो भी एक मुकर्ररा वक्त पर क्या होता है, मुकर्ररा वक्त पर वो डाकिया आता है और वहां से पूरे खतूत निकाल कर क्या करता है, वो एक थैले में डालकर ले जाता है। तो वो डाकिया भी 4 बजे आया और वहां से पूरे खतूत ले गया। फिर उसके बाद देखते हैं,
ध्यान से देखना प्रोसेस पूरी क्या होता है, आपने ये माइंड में रखना है। ये जब मैं समझा रही हूँ ना, आपने पूरे अपने दिमाग में ना वो पिक्चर लाना है, तो आपको सबक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, वहाँ तमाम खतूत के टिकटों पर डाकखाने की मोहर लगाई गई। जो ये देखो ये लेटर, हाँ, ये हमारा लिफाफा हुआ। फिर फिर इस पर जो छोटा ये टिकट लगाया जाता है। फिर जब डाकखाने में जाता है ना, तो उस पर ऐसे गोल है ना, ऐसे छिक्का लगाया जाता है, मतलब उसको क्या कहते हैं? मराठी में ठसा कहते हैं ना, वैसा मुहर, मुहर जो उर्दू में हमारे कहते हैं ना मुहर, और मराठी में जो होता है ना, देखिए उनके पास ऐसा होता है लकड़ी का, और उसके ऊपर ऐसे बनाई जाती है। तो इससे ना वो प्रिंट ऐसे एक इंक के डिब्बिया होती है, उसमें डुबोकर उसमें यहाँ पर दबा दिए जाते हैं, यानी कि वो मुहर लगाई जाती है कि ये टिकट अब यूज हो गया है। देखिए उसका मतलब क्या होता है, मुहर पर तारीख और डाकखाने का नाम लिखा होता था। टिकट पर मोहर लगाने का मतलब ये था कि टिकट इस्तेमाल हो चुकी है, अब इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, है ना? देखिए मतलब क्या होता था, ये क्यों लगाई जाती थी, इस पर डेट भी डाली जाती थी और ये मोहर लगाई जाती थी इससे, ये इस पर लेटर पर। और ये खास करके ना टिकट की जगह लगाई जाती थी। क्यों? कि अब ये लेटर अगर जब जिसके पास अकरम के पास पहुंचता है, फिर वो मतलब ये बताया जा रहा है कि डबल यूज ना किया जाए इस टिकट का, इसलिए इस पर एक बार मुहर लगाई ना, तो फिर वो दोबारा यूज नहीं किया जा सकता था। ये मुहर का मतलब होता था कि इसे एक बार यूज किया गया है, अब दोबारा इस्तेमाल न करें। तो जब भी हम दूसरा लेटर डालेंगे, तो डाकिया फिर लेगा ना, पहले चेक करेगा उस पर मुहर वाला टिकट है या बगैर मुहर वाला। बगैर मुहर मुहर वाला होगा तभी वो एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज वो लेटर नहीं आगे पहुंचाया जाता था, ऐसे होता था। फिर क्या हो गया देखिए, फिर मोहर पर तारीख और डाकखाने का नाम लिखा हुआ था। टिकट पर मोहर लगाने का मतलब ये था कि टिकट इस्तेमाल हो चुका है, अब इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मोहर लगाने के बाद मुख्तलिफ शहरों के खतूत छांटे गए। देखिए अब यहाँ ध्यान देंगे, मोहर लगने के पहला काम क्या हो गया कि डाकिया आया, डाक ले गया, और एक बड़े डाकखाने में जाकर उसने क्या किया, सभी सभी खतूत पर जो टिकट लगी थी उस पर मोहर लगा दी। मोहर लगने के बाद क्या किया गया, मुख्तलिफ शहरों के खतूत छांटे गए अलग अलग, दिल्ली का, नासिक का, शोलापुर का, या इसी तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ शहरों के क्या किए गए, खतूत छांटे गए, अलग 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 किए गए, और इन्हें अलग अलग थैलों में बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया गया, और हवाई जहाज से जाने वाले थैले जल्द भेज दिए गए। हम्म जो फास्ट भेजे जाते ना, तार, उसे तार कहते थे। देखिए जो खत को फास्ट भेजा जाना था ना, उसको एक अलग तरीके का उसका ये होता था टिकट, तो उससे वो पहचाना जाता था कि ये फास्ट। ये कब यूज करते थे, जब मोबाइल नहीं था, है ना, मोबाइल वगैरह, तो किसी का इंतकाल या कोई इमरजेंसी ऐसे कुछ हादसात होते थे ना, तब वो तार इस्तेमाल की जाती थी। तो उसका मतलब होता था कि वो लेटर हमें फास्ट पहुंचाना है। तो उस तरीके के जो लेटर होते थे उन्हें किसके जरिए भेजा जाता था, हवाई जहाज के वगैरह जरिए। हाँ, तो ऐसे पहले अलग किया कर दिए जाते थे लेटर। हम्म फिर देखिए, मुझे दिल्ली जाना था, इसलिए मुझे दिल्ली वाले थैले में बंद किया गया। फिर वो थैला रेलगाड़ी के डाक वाले डिब्बे में पहुंचा दिया गया। तो इसका मतलब है कि देखिए कितनी प्रोसेस से जाना पड़ता था एक लेटर को किसी शख्स तक पहुंचने के लिए। फिर ये लेटर जो था, अकरम का लेटर कौन सा था, दिल्ली जाना था, तो उसे दिल्ली वाले थैले में बंद कर दिया गया। फिर वो थैली कहाँ लेकर गए, ले गए कि रेलगाड़ी के डाक वाले डिब्बे में पहुंचा दिया गया। जब रेलगाड़ी दिल्ली पहुंची, तो डाक का थैला उतार कर बड़े डाक खाने में पहुंचाया गया, जो मेन होता था। हाँ, दिल्ली तो पहुंचा, अब ट्रेन के जरिए डाक हमारा लेटर जो है वो, मगर वहां से जो बड़ा मेन होता है ना डाक खाना, वहां पर पहुंचाया गया। फिर वहां से मुझे दूसरे फिर देखिए अगला, फिर वहां से मुझे दूसरे खतूत के थैले से निकाला गया, और खतूत पर मोहर लगाई गई। फिर मोहर लगाई गई, जो शहर का लेटर था उसमें पहुंचने के बाद फिर उस पर मोहर लगाई गई, और मोहर पर दिल्ली पहुंचने की तारीख लिखी हुई थी। देखो वहां पर फिर मोहर लगाई गई, जिस मतलब दिल्ली का वो लेटर था, तो दिल्ली की मोहर लगाई गई कि यहाँ पहुंचा, और उसकी डेट भी लिखी जाती थी कि इस दिन वो लेटर यहाँ पहुंचा। फिर हलकों और मोहल्लों के खतूत छांटे गए। फिर दिल्ली तो छोटा है नहीं, फिर हल्के और मोहल्लों के खतूत छांटे गए, है ना। जैसे 2-3 हलकों में दिल्ली बटा हुआ है, तो उस हल्के के हिसाब से और मोहल्ले के हिसाब से हल्के, और फिर हल्के के बाद फिर मोहल्ले के हिसाब से खतूत छांटे जाते हैं। हाँ, मेन सिटी में पहुंचने के बाद, और डाकियों को डाक तकसीम की गई। फिर अलग अलग हल्के का, अलग अलग मोहल्ले का जो अलग अलग डाकिया होता था, उनके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था लेटर। एक डाकिया मुझे भी ले गया।
फिर वो एक दरवाजे पर पहुंच गया। एक डाकिया जो ये असलम ने भेजा था लेटर, वो लेकर एक दरवाजे पर पहुंचा। आवाज दी, एक लड़के ने दरवाजा खोला। डाकिये ने मुझे उसके हाथ में दे दिया। वो मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। मैं समझ गया। हल्के का मतलब होता है बड़ी ब्रांच, जैसे शाखा। जैसे देखिए, सबसे छोटा मोहल्ला, मोहल्ले से बड़ा, 4-5 मोहल्ले बना के हल्का बनता है। ऐसा, ऐसे समझिए आप। मतलब एक मोहल्ला, हाँ, मोहल्ला भी कितने बड़े होते हैं, देखिए मोहल्ले भी है ना, बड़े-बड़े सिटी में मोहल्ले भी बड़े-बड़े होते हैं, हाँ। फिर 5-6 मोहल्ले का एक हल्का बनते हैं। फिर 2-3 हल्के के ऊपर और एक सब हल्का बनता है। ऐसे करते-करते वो शहर बनता है। बड़े शहर में ऐसे डिवाइड किया जाता है लेटर। हाँ, फिर देखिए, वो मुझे पाकर बहुत खुश हुआ, मैं समझ गया कि यही अकरम है, मैं इसी के पास मैं इसी के पास भेजा गया हूँ। देखिए, लेटर क्या कह रहा है कि मुझे जब एक लड़के ने लिया, एक दरवाज़े पर डाकिया पहुँचा और उसने आवाज़ दी, तो एक लड़के ने मुझे लिया, तो मैं समझ गया कि मुझे इसी के पास भेजा गया मैं इसी के पास भेजा गया हूँ। तुमने देखा कितने लोग मेरी मदद की, तब जाकर मैं अकरम के पास पहुँचा। तो देखिए, लेटर खुद क्या कह रहा है कि तुमने देखा कि कितने लोगों ने मेरी मदद की अकरम के पास पहुँचने के लिए। ये प्रोसेस होती थी लेटर की, खत की ये प्रोसेस होती थी। पहले ज़माने में देखिए, मोबाइल इंटरनेट का ज़माना नहीं था ना, तो महीने, हफ्ते लग जाते थे किसी अपने का हाल मालूम करने के लिए, अपने का खैरियत, आफ़ियत जानने के लिए। इस तरीके से हमें वक़्त लगता था। और जो फ़ास्ट होता था ना तार, उसको तार कहते थे। वो फ़ास्ट 2 दिन, 1-2 दिन में पहुँच जाता था वो भी, क्योंकि उससे हवाई जहाज़ से पहुँचाया जाता था। फ़ास्ट उसकी प्रोसेस होती थी। और जो ये लेटर वग़ैरह होता था ना, ये स्लो 8 दिन, 10 दिन ऐसे भी उसको जाते थे। तो बहुत अच्छा है, इसमें आपको समझाया गया है। देखिए, आजकल तो ये जो लेटर खतूत होते हैं ना, ये बच्चों की सिर्फ़ किताब के नॉलेज के लिए रह गया है ना? लेटर का तो ज़माना ही नहीं। अब ये लेटर वग़ैरह कहाँ यूज़ होते हैं, जो सरकारी कामों में वग़ैरह ही दस्तावेज़ में यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ तो क्या, अब वहाँ भी इंटरनेट का ज़माना है, तो प्रिंट वग़ैरह का या फिर मोबाइल वग़ैरह का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कुछ ही जगह पर होता है जो लेटर की शक्ल में हमें इन्फॉर्म किया जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा सबक है। देखिए, इसमें जो समझ में नहीं आया, आप वो एंडिंग में सबक के क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। चलिए, फिर हम सबक एंड करते हैं। पहले हम दुआ पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।